Okay, good morning, everybody. Am I audible to you all? Yes, sir. Okay. So in the previous class, we have covered the function till this point. Okay. So almost we have discussed one or two cases also, but we'll start from here itself. So type of user defined function. So there in functions we have seen the basic structure of the function declaration is we have return type, then function name, then within this bracket we have argument list. Okay, so these cases are formed with this only. So first case says like function with no argument and no return value. If the function will have no return value, then we have to write void. Okay, and then function name, and then without argument. So within braces we will not write anything. Okay, this is first case. Second case says function with no argument and return value. So if we have a return value, then return value will have a data type, that is return type. It may be integer, float, char, or whatever. Okay, and then function name, and then this bracket. Okay, we will not write anything in this bracket because we are not passing any argument. Then the third case is function with argument but no return value. So function with argument with no return value. If there is no return value, then we have to write void. Okay, then function name, and then int a comma int b, and whatever arguments that you are passing in the function. Then the fourth case is function with argument and return value. So function with argument and return value. So return value will have its own data type, return type. It may be integer, float, or whatever. Okay. Then function name, and then arguments int a comma int b, and these argument can be of int, float, or whatever is the data type that we are requiring. Okay, so we will see examples of these. The first example is function with no argument and no return value. Okay, so function with no argument and no return value means the function will be of type just void function name and this braces. Within braces we will not write anything. Okay, so here this function will perform addition of two numbers, this add function. Okay, so we are not declaring this void add function before main, so we have to use this prototype. Okay, just to make the compiler know that there is a user defined function whose name is add, whose return type is null, that is void, and we are not passing any argument in this function. Okay, तो ये यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगा. ठीक है, लेकिन अगर ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इसको यहाँ पे लिख देते मेन से पहले, तो ये लाइन की जरूरत नहीं थी. ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज वॉइड मेन. ये मेन फंक्शन है आपका. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दिस एड, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो मैंने बोल दिया प्रोटोटाइप. इसको क्या बोलते हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, द फंक्शन कॉल कर रहे हैं. या वी आर कॉलिंग द फंक्शन ऐड. तो जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहां जाएगा, इस फंक्शन को जहां हमने डिफाइन किया है. कंट्रोल सीधे यहां पे आया. अब यहां पे क्या कर रहा है, int a equal to 6, b equal to 7 and sum. So sum is of data type integer. Okay, sum equal to a plus b, printf percentage the sum. So what it will do, it will print
13. Okay. So in this, we have a function. This is a function. Void add and then. So void means it has no return type, without any return. This bracket is empty. That means it is not passing or it is not taking any of the argument. Okay. Function with no arguments and no return value. Next is function with no argument and return value. तो हम इसमें क्या कर सकते थे? इसमें हम यहाँ सम को रिटर्न कर सकते थे और प्रिंट ना कराते. हम ये प्रिंट को यहां लिख सकते थे ऐड के बाद और सम को रिटर्न करा देते हैं. रिटर्न सम. ओके. तो ये केस में हो जाता ये फंक्शन विद सम रिटर्न टाइप, और यहाँ रिटर्न टाइप में वॉइड की जगह इंटीजर लिख देते. ओके. सो सेकंड केस वही है कि फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू. So here same add function. Now the function will have a return value. So return type is integer. Okay. Then we are calling this function over here. Int sum equal to add. Sum will have the return value, that is C की value sum पे आ जाएगी. Okay. Sum equal to add. Now as soon as we'll execute this line, the control will go through this function. Here int a equal to 6, b equal to 7, c equal to a plus b, return c. So c is 13. So sum will have value 13. Okay. Then in the next line, execution line is this. It will print sum. So it will print 13. Okay. Now the next code is function with argument and no return value. We are passing the argument. Now passing the argument means we can do this declaration. This declaration within the main. Okay. What we can do? We can write like void main and then int a comma b, then scan f, okay, यूजर से इनपुट ले लेंगे. And then in this function what we can do, void, we can call this function void add int a comma int b. So we are passing this value a and b into the function. So we can define this function over here, void add a comma. Okay. We can call this function without this data type. So void add a comma b. Okay. Now what we can do, we can have this variable a and b over here, and we can use this variable itself in this function. Okay. So this type of thing we can do with passing the argument into the function. So here same we are doing. Okay. So in this case what we are doing, we are passing the argument to the return to the function, and the function doesn't have any return value. So हमने main में ही इन function के ये data type declare कर दिया, value भी declare कर दी. ठीक है. Now we are calling the function add a comma b. So control will go directly to this function. Int sum equal to a plus b, and then printf percentage d sum. It is going to print 13. Okay. After this, the control will come back to the main, and there the main, this curly braces shows that the main is also finished. Program will come out of the execution. Okay. Now the next case is we have argument values as well as return type. Okay. So in this we have declared
values in main itself, like int a equal to 7, b equal to 9, and then sum. And then we are calling the function sum equal to add a comma b. And then it has the return type. So we will capture that return value into sum. Okay. And then we are printing sum. So as soon as this line will be executed, the control will go to the function int sum equal to a plus b, and this will return value here. Okay, sum equal to sum. So it will have 7 plus 9, that is 16. 16 will be printed in this program. Okay, यहां तक किसी को कोई डाउट है? फंक्शन डिक्लेरेशन में किसी को कोई डाउट है? फंक्शन डिक्लेरेशन में या टाइप ऑफ फंक्शन कितने हो सकते हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट है? Okay, then we have, if we have functions, then we have to, and we are, if we have function and we are building a modular program, then we have to look into the data type and scope of data type, basically. For example, if I say, if I create a function, for example, area, okay, so for that, the declaration will be like, I'm not returning any value, so void area, and I'm not passing any of the parameters. So, and I'm defining parameters within this function. So int a comma b comma c comma sum or area. Okay. So area equal to a into b into c. Okay. So printf percentage d area. ओके, सो अब ये वेरिएबल्स जो हमने यहाँ डिफाइन किए हैं ए बी और सी, क्या इनको हम कहीं और यूज कर सकते हैं किसी और फंक्शन में? क्या इनका स्कोप वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये डिपेंड करता है कि वेदर दिस डिक्लेरेशन आर लोकल और ग्लोबल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कई सारे फंक्शन हैं, 10 फंक्शंस हैं. 10 फंक्शंस में हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें भी ए कर दिया, इसमें भी बी कर दिया, इसमें भी ए कर दिया, इसमें भी बी कर दिया, इसमें भी ए कर दिया, इसमें भी बी कर दिया. तो क्या होगा? अगर स्कोप लोकल नहीं रहेगा तो ये जो हमने ए बी यहां डिक्लेयर किया है, वही ए बी की वैल्यू यहां पे भी रहेगी, वही ए बी की वैल्यू यहां पे भी रहेगी. ओके, तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, हमने पता ही नहीं होता है कि हमने जो पिछला फंक्शन बनाया था उसमें क्या क्या वेरिएबल लिए थे और क्या वेरिएबल नेम ले रखे थे. ठीक है, तो इस वजह से कंसेप्ट आया लोकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल डिक्लेरेशन. सो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे और जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो सारे लोकल वेरिएबल होंगे. ग्लोबल वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं जस्ट हैश इंक्लूड के बाद. ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल का क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया x और यहां पे हम यूज कर रहे हैं x को, तो x की वैल्यू इस फंक्शन में भी सेम होगी, फंक्शन 1 में. x की वैल्यू फंक्शन 2 में भी सेम होगी, x की वैल्यू फंक्शन 3 में भी सेम होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल. So scope of variable, it means that part of the program, the variable is accessible. किस पोर्शन और किस पार्ट तक ही उस वेरिएबल का एक्सेस रहेगा, उसके आगे उसका कोई एक्सेस नहीं रहेगा. उसी को कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल.
in what part of program the variable is accessible is dependent on whether the variable is declared local or global. So there are two type of declaration. One is local, another is global. Okay. So lifetime of a variable, lifetime of any variable is the time for which the particular variable exists in memory during running of the program or execution of the program. Okay. So lifetime आपका क्या है? Lifetime of any variable is the time for which the particular variable exists in memory during the running of the program. Because memory की कैपेसिटी कम होती है तो उसमें स्टोरेज रजिस्टर्स में वेरिएबल्स आते हैं और जाते हैं. ठीक है. स्कोप वो है कि जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वो वेरिएबल मेमोरी में है कि नहीं. अगर वो प्रोग्राम, अगर आपका कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें आपने लोकल वेरिएबल दे रखे हैं तो वो वेरिएबल्स आपके मेन मेमोरी में होने चाहिए. देन we have discussed about local variable and global variable. तो local variable क्या होते हैं? Local variable are declared inside the body of a function. For example, हम void main और यहां पे हमने int a equal to 10. तो ये हमारा जो डिक्लेरेशन है वो है लोकल वेरिएबल का. ओके. ये बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और फंक्शन का क्या नाम है? मेन. ठीक है. तो लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन विच आर एंड दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड लोकल फॉर दैट फंक्शन. इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. इसको हम किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन बताएं void add. ओके. तो ये डायरेक्टली ए यहां पे यूज नहीं कर सकते. ठीक है. इस ए को यहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा या तो इस ए को हमको पैरामीटर के थ्रू पास करना पड़ेगा इस फंक्शन में. ओके. जैसे हम कर रहे थे, पैरामीटर पास कर रहे थे, वैसे कर सकते. डायरेक्टली इस ए को एक्सेस यहां पे हम नहीं कर सकते. ठीक है. Thus, local variable are internal to the function in which they are defined. Variable declared in main function or any other user defined function are local for the corresponding function. It is not initialized automatically. इसका क्या मतलब हुआ? If I say int a and then if I print what it is going to print, ये क्या प्रिंट करेगा? बताइए. So wanted show error. If I say int a and then I'm just printing a, तो ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? ए की यही प्रिंट तो मतलब एक ही कुछ वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी फिर प्रिंट करेगा ना. अगर इनपुट नहीं कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज वैल्यू. हाँ गार्बेज वैल्यू. गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा. गार्बेज वैल्यू मीन्स कि हम वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें कोई भी वैल्यू पड़ी होगी तो वो फॉर एग्जांपल 10 भी प्रिंट कर सकता है, 12 भी. वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या प्रिंट करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू. ठीक है. तो ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा. तो इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली. इसका ये मतलब हुआ. मतलब ये अगर आपने डिक्लेरेशन, ये क्या किया आपने? int a क्या होता है? ये आपने कहा डिक्लेरेशन. इफ आई से int a इक्वल टू 10, तो ये क्या हुआ? int a ये तो डिक्लेरेशन हो गया और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी तो इनिशियलाइजेशन हो गया. ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया. ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या होता है? ओके. ये बेसिकली ये ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का एक डिफरेंस भी है, इस वजह से मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये पॉइंट को. ओके.
तो इफ आई से INTA, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? What I'm doing over here? इनिशियलाइजेशन। No, it is Initial. declaration. If I say in the next line a equal to 10, this is initialization. ये तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि a का डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर. देयर विल बी अ वेरिएबल नेम a, उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर. इफ आई एम सेइंग a इक्वल टू 10, तो ये क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन की मतलब a में क्या वैल्यू होगी? 10 होगी. इसमें अभी भी डाउट है कि क्लियर हो गया? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में कोई डाउट है? नो सर. ओके. सो जब हम कहते हैं INTA इक्वल टू 10, तो ये हम क्या कर रहे हैं? एक ही लाइन में इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन में कर रहे हैं. INTA ये तो हो गया डिक्लेरेशन. ओके. एंड व्हेन आई एम सेइंग INTA इक्वल टू 10, so I am initializing the value of a also. सर डिक्लेरेशन मतलब आपने ऐसा डिक्लेयर किया कि a इज एन इंटीजर, राइट? हाँ. There will be a variable a that we are going to use in this program and whose data type is integer. Okay? In this case, आप ये float भी हो सकता है, जो भी हो सकता है. तो इसको जब हम बोलते हैं float a फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है? बेसिकली डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को. ओके. एंड देन इफ आई एम सेइंग a इक्वल टू 10, तो इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को जो हमने डिक्लेयर किया था उसका इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं. ओके. तो जो हमारा लोकल वेरिएबल होता है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन नहीं होता है किसी भी वैल्यू का. ओके. अब ये जब डिफरेंस पढ़ेंगे तब ये आपको बताएंगे कि ग्लोबल वेरिएबल में होता है कि नहीं होता है. ठीक है. ये समझ में आया ना? नॉट इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली. अब ये लाइन समझ में आई? क्या कहना चाह रहा है ये? कि अगर हमने डिक्लेयर कर दिया INTA, तो ये a की वैल्यू पे कोई ऑटोमेटिकली 0, 1 या 10 या नल वैल्यू कुछ इनिशियलाइज नहीं करेगा. जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वो इनिशियलाइज हो जाएगी अगर आप उसमें इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं तो. ठीक है. देन वी हैव स्कोप. सो लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड. ओके. ये हम पहली लाइन पे भी पढ़ चुके हैं. Then lifetime. Lifetime of a local variable starts when the control enters the function in which it is declared, and it is destroyed when the control exists from the function. तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया है, तो हम void में, ओके, और उस फंक्शन का नाम हमने रखा है void. ये प्रोटोटाइप भी देना जरूरी होता है मेन से पहले, अगर आपने मेन से पहले फंक्शन को नहीं डिफाइन किया है तो. ठीक है. void add, हम कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं void में, एंड देन इनसाइड दिस स्टेटमेंट 1, एंड देन वी आर जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन add. Okay. And then we are defining the function over here. So function is not having any return type. So void function name add. Okay. And then this, because it has no argument. And here I am declaring INTA equal to 10, B equal to 5, and sum. Okay. Then sum equal to A plus B. Then printf %d sum.
ओके, अब ये जो लाइन कह रहा है लोकल वेरिएबल की कि ये सारे वेरिएबल क्या है, ए बी सम, ये क्या है, लोकल वेरिएबल। ओके, क्यों लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। देखिए, द लोकल वेरिएबल आर इंटरनल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। So variable declared in main function or any other user defined function are local for the corresponding function. ठीक है, तो वो सारे a b और सम क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। ओके, नाउ लास्ट लाइन क्या कह रहा है, लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन द कंट्रोल एंटर द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड इट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंट्रोल एग्जिस्ट फ्रॉम द फंक्शन। तो ये फंक्शन जब ये कॉल होगा, इसका लाइफ टाइम क्या होगा, ए बी और सम का। जब ये फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहां आया, ठीक है, अब इसका लाइफ टाइम स्टार्ट होगा, ओके, ए बी एंड सम का। और जैसे ही ये कंट्रोल वापस मेन में जाता है, ये सारे ए बी एंड सम ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, so lifetime of a local variable starts when the control enters the function in which it is declared and it is destroyed when control exists from the function. तो अब एक और बात बताइए, अगर आपका प्रोग्राम मॉड्यूलर नहीं है, मतलब आपने सारा प्रोग्राम एक ही फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है जिसका नाम है मेन, ओके, सारा काम आपने इस मेन में ही कर रखा है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 टास्क हैं जिसके आपको फंक्शन बना सकते थे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। ओके, अब आप बताइए, अगर मैं इस तरह से प्रोग्राम लिखूं कि मैंने फंक्शन नहीं बनाए हैं और मैं सारी चीजें मेन में ही करा रहा हूं, तो मेमोरी यूजेज क्या होगा, क्या होगा? अगर दोनों केस में बताइएगा, अगर मैं फंक्शंस यूज करके करता हूं वर्सेस मैं विदाउट फंक्शन करता हूं, अब बताइए। अगर ये प्रोग्राम जिसमें हम 3 टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैं विदाउट मेकिंग एनी फंक्शंस, इसको मॉड्यूलर फॉर्म में नहीं करता हूं, सारे काम को मैं मेन फंक्शन में अलग कॉपी पेस्ट या जैसे भी करके मैं कर रहा हूं, मैंने इसका फंक्शंस और मॉड्यूल्स नहीं बनाए, तो मेमोरी यूजेज किस केस में ज्यादा होगी? सर फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें कम होगी और फंक्शन यूज नहीं करेंगे कि एक ही में सब लिख देंगे तो उसमें ज्यादा होगा। या ट्रू, बिकॉज फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इस टास्क के लिए हमको वेरिएबल्स चाहिए 10, इस टास्क के लिए हमको वेरिएबल चाहिए 20, इस टास्क के लिए हमको वेरिएबल चाहिए 15। तो जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट 10 प्लस 20 प्लस 15 इतने वेरिएबल्स तो कम से कम हमें हमारी मेमोरी में होने चाहिए, तभी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको मॉड्यूलर फॉर्म में कर देते हैं, तो कंट्रोल जैसे इस फंक्शन के पास आया, इस फंक्शन में सिर्फ 10 वेरिएबल हैं, तो एट अ टाइम वो 10 वेरिएबल को ही मेमोरी में रखेगा, और जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर जाएगा, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो एफिशिएंटली हम मेमोरी कब यूज कर पा रहे हैं, जब हम प्रोग्राम को मॉड्यूलर बना रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट इसी को रिजेंबल कर रहा है। अगर आप, इसीलिए हम कहते हैं प्रोग्राम हमेशा मॉड्यूलर होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, फंक्शन के स्कोप में जो भी वेरिएबल्स हैं वो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम मेमोरी पे रहेंगे, जैसे ही कंट्रोल दूसरे फंक्शन पे गया, वो सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
तो स्पेस खाली हो जाएगी। ठीक है, तो आप एट ए पर्टिकुलर मोमेंट जो आपकी रैम की कैपेसिटी है, आप सब सिस्टम यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आप 8-10 प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं। गाना भी चल रहा है आपका, आपकी मूवी भी चल रही है, आपकी कोडिंग भी चल रही है, आपका कुछ और टास्क भी चल रहा है। वो डिपेंड किस पे करता है एफिशिएंटली? आपकी रैम कैपेसिटी पे। इसीलिए आप बोलते हैं ना थोड़ा रैम का कॉन्फ़िगरेशन ठीक होना चाहिए। तो रैम बेसिकली क्या है? जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है एट द पर्टिकुलर मोमेंट, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे कहां स्टोर होते हैं? रैम में। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी क्वालिटी की मूवी डाउनलोड कर रखी हो तो 6 GB की होगी या 10 GB की होगी, तो क्या पूरी मूवी उठ के रैम पे आ जाती है? कुछ लोगों के सिस्टम में तो रैम की कैपेसिटी 2 GB की है या 4 GB की है। सारी मूवी उठ के रैम पे नहीं आएगी, पर्टिकुलर पोर्शन आएगा। जब कभी आप, अभी तो आप नए हैं रिलेटिवली, फॉर एग्जाम्पल जब कभी आप बल्कि सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे रन कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो आप मैटलैब पे काम करेंगे इन फ्यूचर। हो सकता है आप करें नहीं करें, बट बेसिकली इन फ्यूचर मैटलैब आपके लिए एक एफिशिएंट टूल है फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। आप उसमें सिमुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैटलैब इटसेल्फ इज ऑफ 10 GB, 10 GB का सॉफ्टवेयर है वो। अलग अलग वर्जन है, कोई कुछ वर्जन 6 GB के हैं, कुछ 4 के हैं, कुछ 10 के हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से वर्जन पे काम करना चाहते हैं। जैसे जैसे वर्जन बढ़ता है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आ जाती है, इस वजह से सॉफ्टवेयर बल्कि हो जाता है। जब आप देखिएगा आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन 4 GB रैम की भी होगी, और जब आप मैटलैब को एग्जीक्यूट कराएंगे अपने या मैटलैब को यूज करेंगे, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। बाकी की चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 और प्रोग्राम आपने चला रखे हैं तो हो सकता है वीडियो रुक रुक के चले। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि मॉड्यूलर होना चाहिए, ताकि हम एफिशिएंटली जो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है मेमोरी की, रैम की, उसको यूज कर सके। ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा था वो शायद क्लियर हुआ कि नहीं आपको? Yes, sir, very clear. ओके, तो नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जो कि डिक्लेयर किया जाए फंक्शन से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मेन से पहले। सो डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन definition is called global variable. It is accessible by all the function in the program. सारे फंक्शन में एक्सेसिबल होगा, उसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट इज इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली बाय अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए पिछले वाले में इसने क्या कहा था, इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली। तो एक डिफरेंस लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का क्या हो गया? Local variable is not initialized directly, but the global variable is initialized. Okay? तो अगर आपसे पूछें कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस तो ये है, इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, इट इज एक्सेसिबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? एक्सेसिबल टू ऑल द फंक्शन। लोकल वेरिएबल में क्या था? वो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए एक्सेसिबल था जहां डिक्लेयर्ड है। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया? इनिशियलाइज local variable is not initialized automatically, global variable is initialized automatically. ठीक है, इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली का क्या मतलब हुआ? अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज डिफाइन करूं int a, ओके, एंड देन इफ आई एम प्रिंटिंग a, then it is not going to print some garbage value. गार्बेज वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा प्री डिफाइंड वैल्यू। ओके, प्री डिफाइंड वैल्यू। अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो प्री डिफाइंड वैल्यू को ही प्रिंट करेगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्री डिफाइंड वैल्यू फॉर इंटीजर इज दिस इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो ये हम देखेंगे आगे। बट अगर लोकल वेरिएबल है
और हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज वैल्यू। ओके, लोकल वेरिएबल क्या प्रिंट करेगा एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या प्रिंट करेगा? लोकल वेरिएबल अगर हमने कहा int a एंड देन आई एम प्रिंटिंग a, ओके, एंड इफ आई एम सेइंग ग्लोबली डिक्लेयर किया हमने int a एंड देन आई एम प्रिंटिंग a, तो ये क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज वैल्यू गार्बेज वैल्यू। और ये क्या प्रिंट करेगा? 0। जीरो। ठीक है, अब समझ में आया इस पॉइंट का मतलब? यस सर। Okay, so now come to this next point, which is scope. So global variable are globally accessed from any part of the program. जैसे यहां पे जो बात की थी एक्सेसिबिलिटी, किसी भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन। लाइफ टाइम क्या है? ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग। ओके, अब हमने अगर 10 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तो जब तक प्रोग्राम रन करेगा वो 10 मेमोरी पे रहेंगे। ठीक है, दीज वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। जब तक प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये वेरिएबल रहेंगे, जब ये टर्मिनेट होगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दीज वेरिएबल ऑक्युपाई मेमोरी लॉन्गर देन लोकल वेरिएबल्स। ओके, तो डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स तो हमने पहले ही देख रखा है, तो उसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमने किसी भी फंक्शन में ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हमने ये फ्लोट ऐड किया, ये क्या है? लोकल वेरिएबल है। ओके, नाउ ग्लोबल वेरिएबल क्या है? ये है जो हमने मेन से पहले डिक्लेयर किए हुए हैं। फ्लोट पाई इक्वल टू एस 0.14159. So this variable is global. Okay, अब इसको हम पूरे प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल मेन में भी यूज कर सकते हैं। कोई अगर फंक्शन डिफाइन किया गया है उसमें भी यूज कर सकते हैं, इसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या है? दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड सम फंक्शन, जैसे कि ये एग्जांपल है रैट। Lifetime of the local variable is the entire execution period of that function in which it is defined. It cannot be accessed by another function. In general, variable declared inside a block are accessible only in that block. Block का मतलब function. Global variable, these variable are declared outside all functions. For example, यहाँ पे जैसे declare किया हुआ है. Lifetime of the global variable is the entire execution period of that program. It can be accessed by any function defined below the declaration. Okay, इसके यहां पे डिक्लेयर कर दिया तो इसके नीचे जो भी फंक्शन डिक्लेयर होगा सब में ग्लोबल इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन व्हेन अ लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड बाय द सिस्टम, जो हमने अभी बात की। अगर हम लोकल वेरिएबल को बोले int a and then if I am printing a, then it will print garbage value. Okay, you must initialize it by yourself, whereas global variables are initialized automatically by the system when you define them as follows. अगर हम सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर दे int a, तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 0, अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, कैर करेंगे तो नल, फ्लोट करेंगे तो 0.00 एंड डबल करेंगे तो 0.000 so on. So it is a good programming practice to initialize variables properly. Okay, otherwise your program may produce unexpected results because uninitialized variable takes some garbage value already available in their memory. This is telling in the context of local variable. Okay, so what is the difference between local and global variable? Local variables are defined and declared within a function. Okay, global variable are declared outside any function.
Local variable cannot be accessed outside the function. Global variable can be accessed. Local variable are alive only for a function. जब वो function पे control आएगा तभी तक रहेंगे. Global variables are alive till the end of the program. Program start होने से end तक वो alive रहेंगे. Local variable are not automatically initialized. Global variables are automatically initialized. Modification in local variable can be done only inside the function in which it is declared. Okay? जिस फंक्शन में वो डिक्लेयर हुए हैं उसी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर. ओके, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल में हमने डिक्लेयर कर दिया a इक्वल टू 10. ओके, फिर हमने एक फंक्शन बनाया. फंक्शन में उस ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं, तो हमने बोला ग्लोबल वेरिएबल को a इक्वल टू 20. तो अब नाउ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. So modification in the global variable can be done from anywhere. Okay. An added advantage of local variable is that it makes it easier to debug and maintain the application. There is nothing to trace. लेकिन अब ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है? पूरे प्रोग्राम का है. अब इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास 100 फंक्शंस हैं और 100 फंक्शन में से 50 फंक्शन में हम ये ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं. तो अब ये ग्लोबल वेरिएबल को हो सकता है हम किसी ऐसे फंक्शन में गलत अपडेट कर दे रहे हो जिसकी वजह से बाकी के 40 फंक्शन जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं. तो ट्रेसेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. ठीक है, अब हमको देखना पड़ेगा किस 50 में से किस फंक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल को गड़बड़ कर रहे हैं. ठीक है, सो वन कैन नॉट बी श्योर इन विच फंक्शन इट विल बी मॉडिफाइड. क्योंकि 50 जहां पे भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं वहां उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. 50 फंक्शन में अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो 50 में से किसी भी फंक्शन पे भी हम ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने बोला ग्लोबल वेरिएबल पाई इक्वल टू 3.14. ओके, और कोई एक फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एरिया, और उसमें गलती से हमने बोल दिया पाई इक्वल टू 6.14. गलती से कर दिया. ठीक है, अब कोई एक और फंक्शन है एरिया ऑफ सर्कल. ओके, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? पाई आर स्क्वायर एरिया इक्वल टू, अब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर आना क्या चाहिए? 3.14 इंटू आर. लेकिन अब हमने क्या किया? गलती से ये पाई को अपडेट कर दिया 6.14 से. ओके, तो अब ये 3.14 की जगह लेने लगेगा 6.14 इंटू आर. अब आपका रिजल्ट आएगा कुछ और, आना चाहिए था कुछ और. अब आप परेशान रहोगे कि गलती कहां की. और अब आपको देखना पड़ेगा जहां जहां पे भी वो ग्लोबल वेरिएबल यूज हुआ है किस फंक्शन में हमने उसको अपडेट कर दिया. ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं पॉइंट? यस सर. ओके, सो ये ट्रेसिबिलिटी की दिक्कत आ जाती है. तो आई होप ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको. कोई डाउट है तो अभी पूछिए. सर, हाँ सर आपने वेरिएबल डिफाइन किया पाई की वैल्यू इक्वल टू 3.14, तो सर वो हम फंक्शन डिफाइन फंक्शन से भी कर सकते हैं ना? हाँ, डिफाइन फंक्शन से भी कर सकते हैं. अगर इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल हमने कर दिया कि पाई इक्वल टू 3.14 और फिर उसको हम यूज कर रहे हैं और मॉडिफाई कर दे रहे हैं तो वो मॉडिफाई हो जाएगी वैल्यू. आप इसको हैश डिफाइन से भी कर सकते हो. सर वो हैश डिफाइन रहेगा तो वो भी ग्लोबल ही होगा ना? हाँ, उसका ठीक है. स्कोप ऑलमोस्ट ग्लोबल रहेगा. और सर वो चेंज हो सकता है बाद में? अब ये देखो, जो आप ये डिफरेंस देख के बताओ मेरे को कि हैश डिफाइन अगर हमने कुछ किया है वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.14, एक डिक्लेरेशन ये किया है और दूसरा डिक्लेरेशन हमने किसी और प्रोग्राम में ये किया है कि इसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया पाई इक्वल टू 3.14. तो क्या इसको चेंज कर सकते हो? ये तो चेंज हो सकता है. किसी भी फंक्शन में जहां पे भी जाओगे जहां ये यूज हो रहा है वो चेंज कर सकता है. हैश डिफाइन वाला वैल्यू चेंज हो सकता है कि नहीं? कल की क्लास में बताओ. ग्लोबल वेरिएबल ये डिक्लेयर करोगे तो चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर हैश डिफाइन कर रखा है तब वो उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक करो. टुमारो विल डिस्कस ऑन दिस.
इसके अलावा और कोई इशू? नो सर। ओके, सो फंक्शन जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है जिसकी बात किए बिना फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, वो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, उसका नाम है रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, क्या नाम है उसका? रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली होता क्या है? वो इट कॉल इटसेल्फ, वो फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहे। ऐसा फंक्शन, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम फंक्शन यूज करते थे वॉइड मेन। अब फंक्शन को कॉल करना है तो क्या लिखते थे? फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन का नाम है ऐड। ओके, फंक्शन को कॉल करना है तो क्या लिखते थे? ऐड। ओके, और यहां फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही यहां पे एग्जीक्यूशन आएगा, ये कंट्रोल यहां चला गया, और ये सारे स्टेटमेंट को खत्म करने के बाद जैसे ही कंट्रोल यहां पे आया, ये मेन पे वापस आ गया। अब जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होते हैं जो अपने आप को कई बार कॉल करते हैं। दैट इज, जैसे ही ये ऐड को हमने कॉल किया, कंट्रोल यहां आया, और यहां पे हम लिख सकते हैं ऐड। ओके, तो जैसे ही अब यहां पे ऐड लिखा, तो ऐड तो एक फंक्शन है, फंक्शन का कंट्रोल फिर यहां पे आ जाएगा। ओके, अब बताइए, अगर मैं सिंपली यहां पे ऐड लिखता हूं, कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूं, तो ये फंक्शन अपने आप को कितनी बार कॉल करेगा? बताइए। यहां पे मैं फंक्शन डिफाइन करके यहां पे मैंने फंक्शन लिख दिया, फिर से यहां पे भी कुछ नहीं है और यहां पे भी कुछ नहीं है, तो ये फंक्शन अपने इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम। ओके, तो ये अपने आप को इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन भी होनी चाहिए, है ना? अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा? ये हमेशा अपने आप को कॉल करता रहेगा और ये इनफाइनाइट टाइम कॉल करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका बेसिक एग्जाम्पल है वो है फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। 120। ओके, बेसिकली जो हम करेंगे, क्या करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे? फॉर का लूप चलाते थे। फॉर आई इक्वल टू एन, एन क्या है आपका? ये नंबर। आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एन, और यहां पे फैक्ट को बोल दिया 1, और ये लूप चला दिया। ठीक है, तो फैक्टोरियल इसका फाइंड आउट हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 पे तो फिर ये 0 हो जाएगा ना। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना बस। हाँ, इंटू एन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। इंटू आई बेसिकली, सॉरी एन लिख दिया था, आई। तो आई की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा ना टोटल। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो क्या होगा? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, आई की वैल्यू 5 है, तो फैक्ट इक्वल टू 1 इंटू 5 होगा पहले, फिर आई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हुई, अब वाई की वैल्यू 4 हो गई, तो ये हो गया 5 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब 1 हुआ तो फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 0, यहां पे लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को कहेंगे कि अगर हम फंक्शन से इसको सॉल्व करें, हमको ये फॉर का लूप नहीं चलाना, विदाउट यूजिंग फॉर लूप हम फैक्टोरियल को फाइंड करना है, तो इसको हम कर सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। ओके, सो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक Excuse me, यू, विल मीट ऑन टुमारो एंड Excuse me, sir. और किसी को इनोवेटिव असाइनमेंट में कोई डाउट है? सर वो इनोवेटिव असाइनमेंट का सर वो 20 तारीख को सर डिस्प्ले करने का आपने वो मेल में लिखा था। सबमिशन सर वो प्रोग्राम रन करके भी चला के बताने को सर लिखा था उसमें मेल में। वो जब हम आपसे प्रेजेंटेशन लेंगे ना, ओके सर। तब हम उसको चला के देखेंगे, लेकिन आप 25 तक उसको सबमिट कर दो। अब वो आपका प्रेजेंटेशन हम लेंगे ऐसे कि आपकी क्लास भी हैम्पर ना हो, क्योंकि हम क्लास के दौरान तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें अभी स्ट्रक्चर और पॉइंटर भी पढ़ना है। तो या तो हम किसी छुट्टी वाले दिन वो प्रेजेंटेशन ले लेंगे, दैट इज सैटरडे संडे, या फिर 4 बजे के बाद आप जिस दिन भी फ्री होंगे उस दिन हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.